Hello everyone, welcome back to Mathapachi. So today we'll be learning an important topic, that is comparing quantities. So in this we'll be learning about ratios, percentage, profit and loss, compound interest, simple interest. So first of all, I'm sorry that I was not active from last few months because of some personal issues. Yeah, and I'll try to upload some of the more videos according to like how you people like it. If you want to make you want me to make videos on some particular topics, then you can just on the below comment below on the comment section, or you can message me on Instagram. I'll provide the link of all those below. Okay, so this topic, comparing quantities, will include a lot of things as I just said, and ये काफी important है for competitive exams and for your basic knowledge. So recommend this to your friends who are weak at maths or who want to learn these things, because school में ये चीजें ढंग से नहीं सिखाई जाती हैं. So I hope I can make a difference. Okay, so I'm sharing my screen with you. Okay, so this is the topic. So basically for this chapter, these chapters, I'll be following NCERT of class 8, and I'll be covering this content with comparing quantities chapter 8. So this has good number of questions, and after we cover this, we can practice some questions of some competitive exams, or depending on how you people want. Okay, so सबसे पहले I'll tell you कि ratios होते क्या हैं बेसिकली. ठीक है, जब कोई भी चीजें हमारे पास होती हैं, then we have the tendency, we human being have a tendency कि हम हमेशा चीजें जो हैं compare करते हैं. Like for example, let's take the example of marks. We compare these things a lot, right? Like suppose your friend got some marks and you got some marks, so you always compare those, like who got better marks or who got less marks. And even if we don't compare, our parents compare our marks with our friends or with our neighbors, right? So if they know this ratio things, then the comparison would become more easier. So because अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी quantities होती हैं, बहुत बड़े बड़े numbers होते हैं, तो अगर हम ratios use करते हैं, तो चीजें जो हैं वो काफी आसान हो जाती हैं. Now how do we use ratios? Basically हम normally अगर हमारे पास कोई दो चीजें हैं, suppose we have 20 and we have 30, okay, this numbers, and we want, और ये हम इनको compare करना चाहते हैं, तो we can simply say कि ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है हम माइनस करके हम निकाल देंगे कि ये 10 ज्यादा है. पर अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े numbers हैं, like suppose I have this and then this, like very very large number, these are also small like this, which then the things comparing this is not that suitable. हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, चीजों को डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली रेशियो क्या होता है, जब हम डिवाइड करके चीजों को कंपेयर करते हैं, उसको हम रेशियो बोलते हैं. दैट्स द बेसिक थिंग. ठीक है, अब जैसे हमारे पास 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं, और हमें इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है. तो हम क्या करते हैं, ये हम ऐसे लिखते हैं. तो इस सिंबल जो है, जो दो डॉट हमने लगा रखे हैं, इसका मतलब होता है रेशियो. ठीक है, तो अगर हमें 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस को कंपेयर करना है, तो हम बेसिकली उन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, ये दो डॉट्स लगा देते हैं. और इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है कि 20 डिवाइडेड बाय 5, बेसिकली ये डिवाइड के सिंबल की जगह हम ये लगा देते हैं. ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज लाइक दिस, कभी भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हम 5:20 ही लिखे, हम 20:5 लिख सकते. तो ऐसा नहीं है कि ऊपर बड़ा नंबर होता है हमेशा और नीचे छोटा, ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है. अगर ऐसा है तो हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, और अगर ऐसा है तो हम इसको हम ऐसे लिखेंगे. मतलब जो ऊपर है वो हम पहले लिखते हैं, और जो नीचे है उसको हम बाद में लिखते हैं. ठीक है, ये तो हो गया हम रेशियो लिखते कैसे हैं. ठीक है, उसके बाद में जब हमें कंपैरिजन करना होता है, तो हम ऐसे ही कंपेयर नहीं करते, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको छोटा करते हैं. नाउ हाउ डू वी सिंप्लीफाई?
जैसे अगर 50/20 लिखा हुआ है, 50:20 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम 5 पहले लिखा है तो हम 5 को ऊपर लिखेंगे और 20 नीचे लिखेंगे। अब जब हमें थोड़ा सा उसको रिड्यूस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसके टेबल में 5 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो ऐसा एक ही नंबर है 5 की टेबल में 5 भी आता है और 20 भी आता है, तो हम दोनों को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं जिसके टेबल में दोनों आते हैं। तो 5 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और जब हम 20 को 5 से करते हैं तो यू गेट 4। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में 1 भी आता हो और 4 भी आता हो 1 के अलावा। ओके, सो this is the final answer, 1:4. Now obviously हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:4, right? We can write it like this. Okay, so this is the ratio. Now how do we compare? हम इसको compare कैसे करते हैं? It's simple. 1:4 अगर है, अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है जिसका मतलब है 1:4, ये जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा स्टार्टिंग में ऊपर 5 ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस, और ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था ये हमारे एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर किसी की वैल्यू एप्पल जो है वो 4 है तो ऑरेंजेस होता है 1 होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एप्पल है वो 4 टाइम्स है ऑरेंजेस के, राइट? 4 टाइम्स है ऑरेंजेस के। सो हम ये बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ apples is 4 times the number of oranges, right? 4 times ये 4 गुना ही है, या फिर हम हिंदी में कहेंगे कि it's the number of apples is 4 times the number, this is in English, हिंदी में ये 4 गुना है, जो apples है वो 4 गुना है oranges के। ठीक है, so this is how you compare using fraction, using ratios. So ratios कुछ और नहीं है, ratios fractions ही हैं। ठीक है, ratios fractions ही हैं। हम जब इस चीजों को डिवाइड करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारा रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये हमारा रेशियो हो गया। अब हम रेशियोज को यूज करके परसेंटेज कैसे निकालते? ठीक है, इट्स जस्ट दैट अगर हमारे पास कोई चीज रेशियो में दे रखी है और हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर हमारे कोई भी चीज रेशियो में दे रखी है और अगर हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, then what we literally do is multiply by 100. That's the only thing we do, and that thing got converted into percentage. Suppose अगर हम ये केस ही ले लें, the ratio था 1/4 और हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम we do just multiply by 100. हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू नो दैट जब तुम 100 और 4 को डिवाइड करते हो basically by 4, you will get 25. So this is in percentage. So always remember, अगर हमें रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो you multiply by 100. और if you want to go back, मतलब अगर तुम्हें परसेंटेज से रेशियो में जाना है वापस परसेंटेज से, then you divide by 100. Okay, so अगर 25% है and you want to remove this percentage sign, you want to go back to ratio or a fraction, you just divide by 100. And that's, if you divide both by 25, then this would be 1/4, right? 5 से करोगे 1 जा, 5 से करोगे 4 जा, sorry 25 से, और 5 से करो 2 बार 5 से करो तो यही आंसर आ जाएगा, right? So basically 25/100, अगर दोनों को तुम 5 से करते हो डिवाइड तो तुम्हें लगता है 5/20 आता है, फिर दोबारा 5 से करते हो तुम्हें 1/4 आता है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो द की पॉइंट इज रेशियो टू परसेंटेज अगर जाना है तो यू मल्टीप्लाई बाय 100, एंड परसेंटेज से अगर रेशियो बनाना है तो यू डिवाइड बाय। दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू कन्वर्ट देम, that's the only thing. So basically quantities compare करने के लिए दो important things we should know जो हमें पता होनी चाहिए, that is ratio and percentage. अगर तुम्हें ये दो चीजों का knowledge है then you will be able to understand a lot of things. जैसे percentage हो गया, वो तो हो ही गया, मतलब profit loss, compound interest, तो ये चीजें जो है ये basic है हर चीज का। ठीक है, okay. So now let's do one example.
A picnic is being planned in a school for class 8. So they are going for a picnic, class 8. Girls are 60% of the total number of students and are 18 in number. So if you understand this question in Hindi, like अगर तुम हिंदी में सोचो तो एक 8 क्लास के बच्चे जो हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 60% है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उसका 60% है ये गर्ल्स, ठीक है, 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, और जो गर्ल्स का नंबर है वो क्या है, 18 है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, वी डोंट नो टोटल बच्चे कितने हैं, बट हमें ये पता है कि जितने भी हैं उसका जो 60% है वो लड़कियां हैं, और वो 60% जो है वो हमारा 18 है। तो किसी चीज का 16% जो है वो क्या है, 60% जो है वो 18 है। तो सिंपल सी बात है, हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे एक्स हैं, ठीक है। तो इसका 60% जो एक्स का है वो मेरा कितना है, 18 है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। 60% ऑफ टोटल नंबर्स, हमेशा याद रखना जो ऑफ का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ओके, एंड एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने लेट किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एक्स है, ठीक है। तो 60% ऑफ एक्स जो है वो 18 है। अब सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि 60% है, उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यू डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स तो है ही है, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, 0 हमेशा कट जाते हैं। 6/10 है, अगर उस साइड जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 10/6। अगर 6 और 18 को अगर तुम कैंसिल करोगे, 6 3 जा 18, so the answer is 6 times 3 10, that is 30, sorry 3 times 10, that is 30। तो जो x आ गया वो मेरा 30 होगा। x क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सो आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। क्वेश्चन है कि मतलब जो जा रही है पॉपुलेशन, जो स्टूडेंट जा रहे हैं उसका 60% जो है वो लड़कियां हैं और वो क्या है, 18 है। सो बेसिकली 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो है वो मेरा 18 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड दे आर 18 इन नंबर। सो ये मैंने लिखा जो है वो सही लिखा है। मैंने बताया था 60% को परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने x मान लिए, तो ये 18 हो गया। जब इसको तुमने सॉल्व किया, 0 से 0 कट गया, 6/10 अगर उधर जाएगा उल्टा हो जाता है, इक्वल टू के जा, तो ये 10/6 हो गया, और ये 3 टाइम्स 10, वो हमारा मल्टीप्लाई करने पे 30 आ गया। सो 30 टोटल बच्चे हो गए। अब 30 टोटल बच्चे हो गए, और तुम्हारा ये जो 18 है ये, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। So this is how you do, ठीक है, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको क्वेश्चन करने के लिए, मैंने जो ये तरीका बताया है वो ये वाला बताया। नाउ दिस इज ऑल्सो वन मेथड। बेसिकली क्या होता है, हमेशा याद रखना जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो हमेशा 100% होती है, उसमें जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 60% है, और वो जो है वो 18 है। तो कहने का मतलब है जो 60% है उसकी वैल्यू 18 है, तो हम 1% की कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड बाय 18 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की है वो हमारी 100% होगी, तभी जो गर्ल्स, टोटल हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो अगर हमें 100 की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बच्चे कितने गए थे, ठीक है। गर्ल्स जो है वो 60% है और जिसकी वैल्यू 18 है, तो हम लिखते हैं 60% का मतलब है 18 गर्ल्स, 18 स्टूडेंट्स। 1% क्या होगा, अगर हमें 1% 16 तो जाके डिवाइड हो जाता है,
ठीक है, 1% की वैल्यू है, तो 100% की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो व्हाट वी डू 18/60 और वी मल्टीप्लाई बाय 100। एक टॉफी का अगर प्राइस पता है तो 100 के लिए मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो वही हमने यहाँ किया है। फिर 0 से 0 कटा, 6 से ये 3 आ गया और इसका भी आंसर 30 आ गया। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, 60% गर्ल्स हैं जिनकी जो वैल्यू है वो 18 है, तो हमें टोटल निकालना, टोटल हमेशा 100 होता है। तो 16 की वैल्यू पता है, एक की निकाली और 100 की हमारी आ गई। ठीक है, दिस इज अदर मेथड। ठीक है, तो तुम किसी को मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। वैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो दिस इज मच बेटर। ओके, बट इफ यू गो बाय लॉजिक, द ट्रेडिशनल मेथड, व्हेन यू वांट टू लर्न, तुम्हें ये मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, so that's the concept for ratio. In the next session we'll be dealing with some questions of ratio and percentage mixed together. Okay, because ratio and percentage are interlinked. Okay, and I might upload, if you want me to do some more questions related to ratios of some competitive exam, then you can just comment, okay, and let me know or message me on Instagram. Bye, see you in the next class. Bye bye.